So hello students, we are going to understand the fifth chapter of the class 11th biology, morphology of flowering plants. What is morphology? At the first we will go to talk about the morphology. What is the morphology? Morphology is biological structure and that is the external structure. Okay, just like if I talk about the human beings, what is the morphology? Two hands, legs, face, alimentary canal. Okay, in this way, just like this flowery plants or plants have this different kinds of the morphology and morphology related with the varieties and the external structure. So the biological structure, parts and system of the composition with detail. You have to study detail because you are going to read or study about the biology, that means related to the that means in life the plants and animal kingdoms. So that is this chapter belong to the plants kingdom. So the large diversity in external structure and flowering plant is called the morphology. There are the two kinds, angiosperm, geosperms. Okay, so this what happened with it. Now we talked about the very simple morphology of the plant, which you have read in your previous classes and studied or discussed in the previous classes. Okay, if we talk about the plant, just like this is the plant and that is mustard plant. मैं इसको mustard plant बोलता हूँ, ठीक है. ये diagram है, that is the main system, two systems, root system and shoot system. If we talk about any kind of the plant, there is the two system and the plant. Root system, underground of the earth or land or soil. Soil के अंदर जो plant है, जो part है plant का, वो root system में आएगा और जो ground level से up जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो shoot system में आएगा. ठीक है. What will happen when we sow a seed into the land? After some time, it shoots come from the shoots comes out after sprouted. Sprout होने के बाद वो बाहर आता है. Germinate होने के बाद उसका shoot निकलना शुरू होता है. ठीक है. Each seed contains a baby plant in it. हर seed में एक छोटा सा plant होता है. ठीक है. Whatever when it that means nourishes with all suitable characteristics, air, water, sunlight and moisture and soil, ये सब चीज़ें मिलके उसको क्या करती है, स्प्राउट करती है. स्प्राउट करने के बाद वो ग्रो होता है. तो वो ग्रो होके कहाँ आता है, लैंड से जैसे ही ऊपर आएगा तो शूट सिस्टम में आ जाएगा. अब शूट सिस्टम का जो मेन पार्ट है, रूट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द, हम पहले रूट पे बात कर लेते हैं कि रूट क्या करता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट? Functions of the root is the most important to hold the plant into the soil firmly. पहली बात है कि जो रूट सिस्टम है वो पूरे प्लांट को फर्मली स्टैंड करके रखता है सॉइल के अंदर. ठीक है. अनदर फंक्शन इज दैट मीन्स इट एब्जॉर्ब द मिनरल्स, water, all those things and nutrients require nutrients for the plants. That means what it acquired from the land, and through the roots and through the phylum and xylem reaches to the all parts of the body. जो भी nutrients root लेता है, roots जो लेती है, roots hold करके रखता है, minerals को acquire करता है, water को acquire करता है, means जितने भी nutrients वो soil से लेता है, उन सबको क्या करता है, प्लांट्स के सारे पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. दैट्स व्हाई द प्लांट्स ग्रो, और तभी प्लांट शूट सिस्टम में ग्रो कर पाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाता है, ये हो गया आपका. अब इसमें टू काइंड्स ऑफ रूट होती है. रूट जो होती है वो टू काइंड्स होती है. एक टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट होती है. टैप रूट में एक मेन रूट होता है जो बिल्कुल एकदम मुसले जैसी होती है ना. मतलब ये समझ लो कि एकदम ये वाला उसका, जैसे टैप रूट का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है आपका रेडिस, कैरोट. ठीक है. ये सारे जो है टैप रूट के एग्जाम्पल है.
उनमें फिर उसमें फाइबर्स वगैरह निकलते रहते हैं, पर रेडिस और जो कैरेट है वो बिल्कुल परफेक्ट टेप रूट है, ठीक है। और यूं अगर देखा जाए अनादर प्लांट में तो एक मेन जो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ जो स्टैंड नीचे तक जाता है और उसके साथ जो उसकी ब्रांचेस निकली रहती है वो फाइब्रस होती है। अब एक होती है ग्रास वाली, जो हर्बिवरस प्लांट होते हैं उसमें क्या, जैसे ही आपने उसको प्लग किया, अपरूटेट किया, जैसे ही उसको अपरूटेट किया तो उसमें से आपको क्या सिर्फ एक फाइबर्स नजर आते हैं वाइट कलर के, कोई एक मेन जो स्ट्रीम है वो नजर नहीं आता है, वो फाइबरस रूट है। रेशेदार जड़ और मुसला जड़, आगे समझ में। तो 2 टाइप्स की होती है, सबके फंक्शन जो मैन है वो लेके चलता है। इसमें एक अनादर आ जाता है कि जब इन रूट्स के अंदर जब कोई बल्ब्स बन जाते हैं, नोट्स बन जाती है, तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण, राइजोबियम बैक्टीरिया इज द वेरी helpful for the growth of the plants because it fixes nitrogen from the atmosphere into the roots, and this nitrogen is the most important nutrients for the plant which supply by the roots to the all parts of the plant. So that is the nitrogen fixing bacteria already found in the dicotyledons plant, means डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट्स होते हैं, डाइकोटिलेडन्स का मतलब ये है कि जिनमें जब उसका जो सीड होता है वो सीड 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, पल्सेस, पीनट्स मतलब आपका ग्राउंडनट है ना, कैस्यूनट, आलमंड, ये सब डाइकोटिलेडन है, जिसके 2 द्विबीजपत्री, जिसके 2 हिस्से हो जाते, दालों के 2 हिस्से हो जाते ना, उन सब में इस तरीके का नोट्स बन जाते हैं, वो राइजोबियम होता है। और आल पल्सेस, देखिए जितने भी चीजों के मैंने नाम लिए उन सब में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन का जो मेन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उसका मेन जो है वो कंटेंट नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो पल्सेस में होते हैं, तो डाइकोटिलेडन होगा। मोनोकोटिलेडन मींस सिंगल सीड, जिसके 2 भाग नहीं होते, वो फर्दर हम जाएंगे। हम चले जाते हैं सूट सिस्टम में, तो ये मैंने फंक्शंस आपको बता दिया। स्टेम पे आ जाते हैं। स्टेम जो है वो उसके बाद उसको ऑन द अर्थ सॉइल के ऊपर वो स्टैंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है, और उसी में ताकत होती है स्टेम में, ठीक है। स्टेम यहां से नीचे से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ऊपर जाते जाते अगर वो प्लांट बड़ा है उस हिसाब से वो फैलता है ना, डेवलप होता है। अब जैसे स्टेम से गए तो लिव्स, स्टेम हो गया, अब लीफ हो गई। Leaves are the food factory for the plant. Green leaf. Green plants make their own food with through the photosynthesis. Okay, what is photosynthesis? You learn it. There is no need to talk about further. And that is the branches, and when that is the grow and nourishes, it will give the flowering stage पे आ जाता है। Flowering stage पे जैसे ही आता है, जब flowers उसमें आता है ना, तो फ्लावरिंग स्टेज में आने के बाद फ्रूटिंग स्टेज में आने के लिए उसमें फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। और फर्टिलाइजेशन में फ्लावर जो है वो क्या उसमें बाइसेक्सुअल है, वो यूनिसेक्सुअल है ना, वो उसका भी फर्टिलाइजेशन जब होगा ओवरी में जाके वो फ्रूट में चेंज होगा। जितना ज्यादा फ्लावरिंग होगा उतना ज्यादा फ्रूट्स होगा, सीधा सा है। तो ये जो सिस्टम है पूरा 2 सिस्टम, ये मार्फोलॉजी है। अब मार्फोलॉजी में यू हैव डन इन योर 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में आपने हिबिस्कस और मस्टर्ड जो था उसका आप प्रोजेक्ट कर चुके है ना। उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया कि उसके हर पार्ट को, उसके फ्लावर के हर पार्ट को, लीव को, हर प्लांट के हर पार्ट को आपने अलग अलग करके उसको डायसेक्ट करके और उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में चिपकाया है ना। उसमें नंबर ऑफ पेटल्स कितने, हिबिस्कस में 5 ही होते हैं, है ना, मस्टर्ड में 5 ही होते हैं पेटल्स, मतलब उसमें नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ उसके वल्स, कैलिक्स, कैल्विक, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो ये पूरी मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी में टेक्निकली भी जाएंगे कि अगर इतना है तो उसके कैलिक्स कितने, उसके वर्ल कितने होंगे, आया समझ में। वो सारा जो आता है वो मार्फोलॉजी में आता है। तो आप इसको स्टडी कीजिए और इसको पूरा समझिए। ये जो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये सारा आपको, ये टैप रूट मैंने बता दिया है ना। अब इसमें आगे जाके क्या आएगा, जैसे मैंने बता दिया रेडिस और कैरेट बता दिया। अब पोटैटो की बात करो तो इसमें क्या होता है, दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पार्ट एंड यू नो वेरी वेल दैट इज द मीन्स ऑफ द एडाप्टेशन।
Okay, due to the adaptation, some plants, just like if we talk about the xerophytes, autotrophs, ये सारी चीजें आएगी उसमें, है ना। हमको हैबिटेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स बाइफर्केट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं, जो जीरोफाइट्स में क्या होता है, जिस स्टेम है ना, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्टेम, लीव्स जो है स्टेम में मॉडिफाइड हो जाती है ना, बिकॉज देयर इज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये बात हो गई। फिर हम कहते हैं कि अब पोटैटो, स्वीट पोटैटो और शुगर केन की बात करो तो मॉडिफाइड स्टेम है, जिंजर और ये सब, और गार्लिक और अब ओनियन की बात करें तो दीज आर द बल्ब्स है, वो बल्ब है। सो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तो इसको आप आगे पढ़ के और स्टडी करिए, स्टडी करने के बाद मुझसे जो भी आपका डाउट है पूछिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए।